Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 15 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on arrangement which I've taken from previous year SimCats, and the set says 6 players from 6 different countries meet at an annual meet of sports marathon forum. Each of them has a different number of tokens of value 5t and 10t. For example, if one has n number of tokens of any denomination, then no other player has n number of token of any denomination. The amount with each one is a multiple of 10 and it is in AP. The minimum and the maximum number of token of any denomination with anyone is 10 and 24 respectively. Further, the following information is known. The player from China does not have the maximum amount, which is 290T. The player from Sri Lanka has the least amount. The player from Nepal has 24 tokens of 5T. Number of 5T token with the player from China, Sri Lanka, India and Japan is in arithmetic progression in same order. The player from Bangladesh has 20 tokens of 5T and 11 tokens of 10T. Number of tokens of 5T and 10T with the player from Sri Lanka is consecutive integer. The player from Japan has the least among China, Japan, India and Nepal. ठीक है. So basically एक सेट है जहां पे अपने को 5 अलग अलग पैरामीटर पे चीजों को फिगर आउट करना है. What I have done, I've curated a small table which was not given in the question, so I've created that. जहां पे I mentioned position, country, 5T token with the country and 10T token with the respective country, and subsequent I can get the amount part. ठीक है. While I was reading, I figured out कि मेरे को country के context में बहुत information दी गई है, यानी कि player from China, player from Sri Lanka, player from Nepal. So I'll be using the country name as an anchor to figure out the things for this particular arrangement. ठीक है. ऑल्सो पहले वाले पैरा में कुछ कुछ चीजें दी गई, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं. क्या कह रहा है कि 6 अलग अलग कंट्री के प्लेयर्स हैं, उनके पास अलग अलग वैल्यू ऑफ 5T और 10T कॉइन्स है. मतलब मान लो इंडिया का कोई प्लेयर है जिसके पास 10 नंबर ऑफ टोकन ऑफ 5T आर अवेलेबल विद द इंडियन टीम. तो 10 नंबर ऑफ टोकन किसी भी डेनोमिनेशन में किसी भी कंट्री के पास अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा ये पहला पैरा कहना चाह रहा है. ऑल्सो जो इनका टोटल अमाउंट बन रहा है विद दी ऑल दी 6 कंट्री, वो एक एपी के ऑर्डर में बनने वाला है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऑर्डर में मिलने वाला है. तीसरा पॉइंट ये दिया था, मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन ऑफ एनी डेनोमिनेशन विथ एनीवन इज 10 से लेके 24 के बीच में होने वाला है. सो 10 से 24 का मतलब 15 वैल्यू हो सकती है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेके 24 तक. और ये 6 अलग अलग कंट्री है, इनके पास 5T की 6 अलग वैल्यूज, 10T की 6 अलग वैल्यूज, यानी कि टोटल 12 वैल्यूज हैं जो कि यहाँ पे आएंगी. और वो 12 वैल्यू कहां से आएंगी? इन गिवन 15 में से कोई 12 वैल्यू आने वाली है, यानी कि 10 या 24 में से 10 से 24 के बीच में से कोई 12 वैल्यू अपने को यहाँ पे फीड करनी होगी, सो एज टू कंप्लीट दी अरेंजमेंट. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. जो ये पॉइंट्स दिए वहां से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करा था. द प्लेयर फ्रॉम चाइना डज नॉट हैव द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज 290T. यानी कि चाइना का कोई प्लेयर है जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट भी नहीं है, और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 290T. द प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका हैज द लीस्ट अमाउंट. जो श्रीलंका का प्लेयर उसके पास सबसे कम अमाउंट है. द प्लेयर फ्रॉम नेपाल हैज 24 टोकन्स ऑफ 5T. चलो ये लिखते हैं, द प्लेयर फ्रॉम नेपाल हैज 24 टोकन ऑफ 5T. ठीक. Number of 5T token with the player from China, Sri Lanka, India and Japan is in AP in same order. जो 5T टोकन है चाइना, श्रीलंका, इंडिया और जापान के, वो एक एपी ऑर्डर में क्रिएट हो रहे हैं और उसी ऑर्डर में भी क्रिएट हो रहे हैं. द प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश हैज 20 टोकन ऑफ 5T एंड 11 टोकन ऑफ 10T. ठीक है. बांग्लादेश के बारे में कह रहा है कि उसके पास 20 टोकन ऑफ 5T है, यानी कि 20 टोकन ऑफ 5T एंड 11 टोकन ऑफ 10T, यानी कि 20 इंटू 5 100 और 11 इंटू 10 110, यानी कि इसके पास 210 T है, ऐसा कहना चाह रहा है. पॉइंट नंबर मेरा 5. द नंबर ऑफ टोकन ऑफ 5T एंड 10T विद द प्लेयर ऑफ श्रीलंका इज कंसेक्यूटिव इंटीजर. श्रीलंका की जो टीम है ना, उसके पास जो 5T का नंबर ऑफ टोकन है और 10T का नंबर ऑफ टोकन है वो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी कि n और n+1 के ऑर्डर में होना चाहिए. मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 11, यहाँ 11, 12, 12, 13, 13, 14, ऐसा कुछ केस है जो वी कैन थिंक ऑफ. ठीक है. ऑल्सो वो 10, 11 नहीं होगा क्योंकि 11 ऑलरेडी मेंशन है और 11 रिपीट नहीं हो सकता. वो 11 और 12 नहीं होगा बिकॉज 11 अगेन है. 12 और 11, 13 हो सकता है, 13 और 14 हो सकता है, 14, 15, 15, 16 एंड सो ऑन. देयर कुड बी अ मल्टीपल केसेस. ठीक है. The player from Japan has the least amount among the
चाइना, जापान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, जापान का जो प्लेयर है उसके पास सबसे कम अमाउंट है चाइना, जापान, इंडिया और नेपाल के कंपैरिजन, मतलब इन चारों को जब हम ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे कम अमाउंट जो आता है वो है जापान। ठीक है, सो बेसिकली मैंने एक बार पूरे पॉइंट्स को पढ़ा एंड आई फिगर्ड आउट सर्टेन थिंग्स, जिसमें कि नेपाल का कुछ कुछ मिल गया, बांग्लादेश के बारे में कुछ कुछ मिल गया। ठीक है, चलो फिर से पढ़ते हैं। द प्लेयर फ्रॉम चाइना डज नॉट हैव द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज 290। द प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका हैज द लीस्ट अमाउंट। अच्छा, श्रीलंका के बारे में ना दो पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि उसके पास सबसे कम पैसा है, दूसरा कह रहा है कि उनके पास जो 5T और 10T का जो टोकन है वो कंसेक्यूटिव में। सबसे कम पैसा किसके पास होगा? जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। ठीक है, कम नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13 कुछ ऐसा होना चाहिए, और सबसे कम अमाउंट भी होना, यानी कि 210 से कम आना चाहिए, क्योंकि 210 बांग्लादेश का मिल चुका है, मैंने हमें मिला हुआ है। ठीक है, चलो लेट्स थिंक ऑफ श्रीलंका ना। ऑल्सो पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ 5T टोकन विद चाइना, श्रीलंका, इंडिया एंड जापान इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन दी सेम ऑर्डर। चलो ये लिख लेते हैं, चाइना, श्रीलंका, इंडिया एंड जापान, इनके पास जो 5T टोकन है ये किसी एपी में बन रहा है। एपी का मतलब पता है ना, कि दो कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है वो बराबर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, श्रीलंका का पहले पॉइंट यूज करते हैं, बिकॉज श्रीलंका के बारे में पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6 में क्या कहना चाह रहा था? पॉइंट नंबर 6 कह रहा था कि इनके पास जो 5T और 10T का टोकन है वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होने वाला है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा था कि वो लीस्ट अमाउंट भी रखा है। ऑल्सो वी नो दिस कि वो जो अमाउंट है वो 210 से कम होना चाहिए। ठीक है, 210 से कम होना चाहिए एंड कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए, और वो 10 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि वो 10 होगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 11 ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि 11 आ चुका है। और पहले ही पॉइंट में बोला था कि भैया किसी भी ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ टोकन ऑफ वैल्यू 5T एंड 10T। ठीक है, 12 और 13 प्रॉब्ली हो सकता है। अगर मैं 12 और 13 वाला केस लेता हूं, यानी कि 60 प्लस 130 विच बिकम्स 190, विच इज इन अ वे पॉसिबल। अच्छा, 13 और 14 कर सकते हैं क्या? 13 और 14 में क्या होगा? 65 प्लस 140, तो हो जाता है 205। यार ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि जो टोटल अमाउंट किसी के पास है वो है मल्टीपल ऑफ 10, और ये मल्टीपल ऑफ 10 तो नहीं है। ठीक है, 14 और 15 हो सकता है क्या? 14 और 15 हो सकता है, यानी कि 70 प्लस 150 यानी कि 220 हो तो सकता था। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें बांग्लादेश का ऑलरेडी 210 पता, और हमें क्या पता था कि श्रीलंका के पास सबसे कम पैसा है। तो एक केस मिला अपने को जहां पे ये पता चल गया कि श्रीलंका के पास कितना पैसा हो सकता है, 190, और वो किस डिस्ट्रीब्यूशन में होगा? वो होगा 12 और 13 के डिस्ट्रीब्यूशन में। 12 और 13 के डिस्ट्रीब्यूशन में 190। ठीक है, अब देखो चीजें थोड़ी सी अपने लिए आसान होनी शुरू हो गई। ठीक है, अपने को एक चीज तो मिल गया श्रीलंका का। ठीक, श्रीलंका का एक तो अमाउंट मिल गया, वो जो कि है मिनिमम। मिनिमम कितना है? 190। ठीक है, 190 के बाद, सॉरी, 190 के बाद क्या मैं 190 के बाद अगर मेरे को 10 के टर्म्स में भी लेके चलना है, यानी कि 10 के मल्टीपल्स में भी लेके चलना है और एपी भी बनाना है, तो एक पॉसिबिलिटी था कि वो एपी बन जाए 190, 200, 210, 220 ऐसा करके बन जाए, 220, 230 और 240, यानी कि 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कितना आ रहा है? 240, और मैक्सिमम अमाउंट अपने को कितना दिया होता? 290, विच इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक और एपी बन सकती है 190 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20, क्योंकि मैंने ये लॉजिक से तोड़ा है। 190 के बाद हम ले सकते हैं 210, 230, 250, 270, 290। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 290 आ रहा है, मिनिमम अमाउंट 190 आ रहा है। परफेक्ट, ये एक मेरे को एपी का ऑर्डर मिल गया है, और मेरे को यहाँ से ये पता चल गया कि इन 6 लोगों के पास जो 6 अलग अलग वैल्यू के अमाउंट होने वो कौन से होने? 190, 210, 230, 250, 270 एंड 290। ठीक है, अब अपने लिए थोड़ा सा सेट और क्रैक हो गया और थोड़ा और आसान हो गया। ठीक है, फर्दर आई ऑल्सो नो दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट 190 की वैल्यू, आई गॉट 210 की वैल्यू। ठीक है, नाउ आई नीड टू फिगर आउट 230 की वैल्यू फॉर सम country, 250 की वैल्यू फॉर सम कंट्री, 270 की वैल्यू फॉर सम कंट्री एंड 290 की वैल्यू फॉर सम कंट्री। ठीक है,
अच्छा, लेट्स यूज पॉइंट नंबर 4 को यूज करते हैं, जहां पे अपने को पता था कि भाई नंबर ऑफ 5D टोकन विद द प्लेयर फ्रॉम चाइना, श्रीलंका एंड इंडिया एंड जापान इज इन एपी। ठीक है, अब 12 से कम भी होने वाला है। अब ये समझना ना, चाइना, श्रीलंका, इंडिया और जापान, ये लिखा था ना, इनके पास जो 5T का टोकन है वो किसी एपी के ऑर्डर में होना चाहिए। 12 से कम क्या वैल्यू बन सकती है? 11 बन सकती थी, 10 बन सकती थी। 11 ले नहीं सकते क्योंकि 11 यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो एक ही वैल्यू दे सकते हैं, वो क्या है? 10। अगर 10 यहाँ है तो यहाँ पे क्या आएगा? 12, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 16। क्यों? क्योंकि ये एक एपी का ऑर्डर क्रिएट करना था और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 का ऑर्डर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चीजें और आसान हो गई। ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पे अब हम जगह बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने 5T का टोकन फिगर आउट कर लिया फॉर ऑल दी कंट्रीज। नाउ आई नीड टू फिगर आउट 10T का टोकन फॉर ऑल दी कंट्रीज। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी एबल टू गेट दी अमाउंट। ठीक है, अभी तक मेरे को ये पता है कि श्रीलंका है जो कि 6वें पोजीशन पे होने वाला है, बांग्लादेश है जो कि 5th पोजीशन पे होने वाला है। चाइना के बारे में पता है कि यार वो मैक्सिमम अमाउंट नहीं लेता, यानी कि उसका 290T नहीं हो सकता, उसका क्या हो सकता है? 230, 250, 270 में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। द प्लेयर फ्रॉम चाइना डज नॉट हैव द मैक्सिमम अमाउंट। अच्छा, ये होल्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 2 मैंने यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 3 यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 4 यूज कर लिया, 5 यूज कर लिया, 6 यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहे हैं? द प्लेयर फ्रॉम जापान हैज द लीस्ट अमाउंट अमंग चाइना, जापान, इंडिया, नेपाल। चाइना, इंडिया, जापान और नेपाल, इन जो बची हुई 4 कंट्री में सबसे कम पैसा किसके पास है? जापान वालों के पास है, यानी कि वो सबसे कम अमाउंट कितना हो सकता था? 230, बिकॉज बाकी 2 कंट्रीज को हमने 2 अलग अलग अमाउंट दे दिया और इन 4 कंट्री के लिए यही 4 अमाउंट बचा भी है। अब यहाँ पे एक तुम्हारे पास समझने की जरूरत है, जो पेपर सेटर है वो हमेशा क्लू छिपा के रखता है। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी प्रैक्टिस के साथ, जहां पे तुम्हें क्लूज दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट शोज दैट आई एम गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन। फिर से पॉइंट पढ़ता हूं। द प्लेयर फ्रॉम जापान हैज द लीस्ट अमंग द चाइना, इंडिया, चाइना, जापान, इंडिया, नेपाल। और नोटिस करो, मेरे को यही 4 कंट्री का अमाउंट निकालना बाकी है और मेरे पास 4 ही वैल्यू बची है। बाय दैट लॉजिक आई फिगर्ड आउट कि जापान का क्या होना चाहिए? 230 भी मिल गया, एंड ऑल्सो इट हैज टू बी एट 4th पोजीशन। ठीक है जी, चलो यहाँ पे 5th मिला हुआ है, यहाँ पे 6th मिला हुआ है। ठीक, चाइना का, सॉरी, जापान का 230 भी होना है, 230T होना है, जिसमें से 16 तो भैया 5 रुपए से बनना है, मतलब 5T की वैल्यू से बनना है, यानी कि 80 मिल चुका है, तो रिमेनिंग 150 अपने को फिगर आउट करना है। 150 10 के डिवीजन से, यानी कि यहाँ पे 15 रहे होंगे, तो 16 5 जा 80, 15 into 10 50। सो बेसिकली 150 प्लस 80 वो बन गया 230 का टोकन। ठीक है, चलो और फिगर आउट करते हैं, पॉइंट नंबर 7 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 1 एक है जो अपने को हेल्प करने के लिए बाकी है, विच इज चाइना का सबसे ज्यादा अमाउंट भी नहीं देना और 290 भी देना है। तो चाइना का अमाउंट क्या हो सकता है? या तो 250 हो सकता था, या तो 270 हो सकता था। ठीक है, चाइना को क्या मैं 250 ले सकता हूं? अगर चाइना को 250 लूंगा, क्योंकि चाइना के पास 10 टोकन ऑलरेडी 5T के पड़े हुए हैं, यानी कि 10 टोकन इंटू 5T का मतलब 50 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं 250 बनाना है, तो यानी कि मेरे को 20 टोकन लेने पड़ेंगे 10 वाले, तभी वो बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 20 ऑलरेडी यहाँ पे आ रखा है। बाय दैट लॉजिक आई कंक्लूडेड कि यहाँ पे 250T नहीं आएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। मेरे को क्या पता था कि चाइना का मैक्सिमम नहीं होगा, मैंने क्या देखा, चाइना का क्या हो सकता है? 250 या 270 हो सकता था। अच्छा, चाइना का मैंने ऑलरेडी 10 टोकन, सॉरी 5T के 10 नंबर ऑफ टोकन फिगर आउट करे हुए, यानी चाइना का 50 रुपए उसके पास पड़ा हुआ, ये पता है। रिमेनिंग 250 वाले केस के लिए चाइना को 200 रुपए चाहिए, जो कि 10 टोकन 10T के टोकन के हिसाब से 20 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि 20 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहां से क्या लॉजिक निकला? ये क्या होना चाहिए? 270T। 270T का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 50 और 220। 220 का मतलब यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, चलो 270 भी अपने को मिल गया। सिमिलरली आई कैन फिगर आउट फॉर नेपाल एंड इंडिया। नेपाल के लिए क्या पता है? नेपाल के पास 24 इंटू 5 यानी कि 120 रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं नेपाल ने। ठीक है, नेपाल के पास या तो 250 बन सकता है या तो 290 बन सकता है। 250 बनाने का मतलब 130 बाकी है। 130 के लिए यहाँ पे 13 देना पड़ेगा, जो कि नहीं कर सकता क्योंकि 13 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 290T। और 290T का मतलब 120 माइनस 290T, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था?
17, 24 इंटू 5 120, 17 इंटू 10 170। दिस विल सम टू 290 टी। और किसके लिए बचा? इसका वैल्यू बचा विच इज 250। 250 कैसे बनेगा? 250 बनाने के लिए आई हैव 14 इंटू 5 70, 70 में से 180, 180 मतलब 10 का माइनस 10 का डिवाइड करो तो बन गया 18। ऑल्सो यहाँ पे नेपाल आ जाएगी एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, चाइना आ गई एट सेकेंड पोजीशन एंड इंडिया आ गई एट थर्ड पोजीशन, ठीक है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर अरेंजमेंट। आई हैव फिगर्ड आउट ऑल द थिंग्स। पोजीशंस मिल गई हैं, कंट्री का नाम मिल गया है, 5T टोकन्स, नंबर ऑफ 5T टोकन, नंबर ऑफ 10T टोकन्स एंड अमाउंट भी फिगर आउट कर लिया। चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा और फिगर आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द अमाउंट विद द प्लेयर फ्रॉम चाइना। चाइना वालों के पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? चाइना वालों के पास यहाँ पे 270 टी का अमाउंट पड़ा हुआ है, यानी कि इट हैज टू बी 270 टी, ठीक है। What is the average of number of token of 10T token with all the 6 player? जो 6 वो प्लेयर है उनके पास 10T टोकन का कितना समय, तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 और 8 21 21 और 5 26, ठीक है। 26 कैरी 2 2 1 3 4 6 7 8 9 यानी कि 90, 6 by 6 कितना हो गया? 16, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए था 16। इसका आंसर था 270 टी। सो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द प्लेयर फ्रॉम इंडिया स्पेंड्स 4 टोकन ऑफ 5T। जो इंडिया का प्लेयर है इसने क्या करा? 4 टोकन ऑफ 5T, यानी कि अब इसके पास क्या रह गया है? 10 टोकन ऑफ 5T रह गया है एंड 2 टोकन ऑफ 10T, यानी कि 2 टोकन ऑफ 10T, यानी कि अब इसके पास रह गया है 16 इंटू 10, ठीक है। क्या था? द प्लेयर फ्रॉम द इंडिया स्पेंड्स 40 टोकन ऑफ 5T एंड 2 टोकन ऑफ 10T एंड अ प्लेयर फ्रॉम जापान। जापान वालों के बारे में भी कुछ बता रखा है यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तब हम लिख लेते हैं। जापान वालों के लिए क्या बता रखा है? जापान वालों के लिए बता रखा है कि भैया उनके पास 5T टोकन्स, टू, क्या बोला हुआ है, एंड जापान स्पेंड्स 2 टोकन ऑफ 5T। 2 टोकन ऑफ 5T का मतलब 14 इंटू 5 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, इधर गया 10, 3 टोकन ऑफ 10T, 3 टोकन ऑफ 10T, यानी कि यहाँ पे 15 था, ये यार 15 लिखा हुआ है ना, ये 15 है, ठीक है। 15 माइनस 3 यानी कि 12, 12 इंटू 10। सो बेसिकली इसके पास कितना आ गया? 70 और 120, 190, 230 से घट के 190, और इसके पास कितना है? 50 और 160, यानी कि 230, सॉरी 210, ठीक है। इंडिया के पास था कितना? पहले था 250, पहले था 250 जो कि अब 210 बन गया, और जापान के पास था 230 जो कि अब 190 बन गया, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल ऑफ द अमाउंट विद द बोथ ऑफ द प्लेयर्स? तो पहले कितना था? 210 और 250, इट वाज 480 था, अब कितना हो गया? 190 और ये, यानी कि 400 रुपए हो गए, यानी कि 400 का मतलब 0 से 0 10/12 यानी कि 5/6 हो गया, यानी कि 5/6, यानी कि 1/6 का डिक्रीज है, यानी कि 16.67 आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 16.67 परसेंटेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका लेंट 10 टोकन ऑफ 5T। अच्छा थोड़ा जगह बना लेते हैं इनके लिए। अब यार ये बड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियर कट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की चेक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। सो भागना मत ऐसे क्वेश्चंस में, अगर इफ यू कम अक्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन योर मॉक पेपर्स या इन योर ऑन योर डी डे आल्सो, ठीक है। द प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका लेंट 10 टोकन ऑफ 5T टू द प्लेयर फ्रॉम नेपाल। अच्छा श्रीलंका वाले प्लेयर ने क्या करा? 10 टोकन दे दिए 5 वाले, यानी कि अब श्रीलंका वालों के पास 2 टोकन बचे हैं 5 वाले, एंड नेपाल वालों को दे दिया उन्होंने ना, तो नेपाल वालों के पास क्या हो गया है? नेपाल के पास अब 34 टोकन हो गए 5 वाले, ठीक। टू द प्ले फ्रॉम, बट लेटर ही नीड्स टू बोरो 10 टोकन ऑफ 10T फ्रॉम हिम। अच्छा बाद में इसने क्या करा? 10T के जो टोकन इसने इससे बोरो कर लिए, यानी कि अब इसके पास रह गए, नेपाल के पास 7 टोकन रह गए 10 वाले, 17 में से 10 ले लिया, और श्रीलंका के पास
13 की जगह पे, ये 13 है, 13 की जगह पे 23 हो गया ना, क्योंकि 10 ऐड हो गए, 23 इंटू 10। ठीक है, पूछा क्या है, इफ ही स्पेंड द एंटायर अमाउंट देन हाउ मच वाज हिज टोटल स्पेंडिंग। अच्छा, श्रीलंका ने अगर पूरा पैसा खर्च कर लिया तो कितना स्पेंड करा होगा, 230 प्लस 5 2 इंटू 10, यानी कि टोटल इसने 240 रुपए खर्च करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खर्च करा होगा। क्या नाम है, इसने, श्रीलंका। ठीक है, चलो, काफी अच्छा सेट था। बेसिक अरेंजमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत नंबर, मतलब मैथमेटिक्स की स्किल चेक कर रहा था, और क्या, बस यही था, पेशेंस की गेम थी इस पर्टिकुलर सेट में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।